Hello everyone, I'm Justina Paris and I welcome you all to the discussion of 20 GK questions from CLAT Perspective. इस वीडियो में हम ऐसे questions देखेंगे आज के current affairs से and I've also added some bonus questions from yesterday's current affairs because yesterday हमने एक special addition किया था environment question से, so उसके related कुछ questions हमने अभी दिया है कल के current affairs से. So I hope you have revised and watched my yesterday's video as well. Right, let's start with the first question of the day then. Which state is officially notified a ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी और ये आज कल के दिन किया था ऑन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु. तो आंसर इसका है बी, तमिलनाडु धनुषकोडी में. नेक्स्ट, द ग्रेटर फ्लेमिंगो सैंक्चुरी एट धनुषकोडी इज पार्ट ऑफ विच इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. ये पार्ट है एक बायोस्फीयर रिजर्व जो है गल्फ ऑफ मन्नार. तो इसका आंसर है बी, गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व. प्रोसीडिंग टू द थर्ड क्वेश्चन, in which of the following countries does the Brahmaputra river not flow? Read the question well. ये इंडिया में तो फ्लो ही करती है, चाइना में भी करती है, ओरिजिन तो वहीं से होता है, बांग्लादेश में जाके बे ऑफ बंगाल के थ्रू मिल जाती है. तो यहाँ पे आंसर एक ही है, नेपाल. नेपाल में ये फ्लो नहीं करती, therefore your answer is C. Let's proceed to the next question. What is the local name of the Brahmaputra river in Tibet? तिब्बत में इसको हम कहते हैं यारलुंग ज़ैंगपो and therefore your answer to this is B, यारलुंग ज़ैंगपो. Which Indian state is not part of the Brahmaputra basin? ठीक है, यहाँ पे याद रखना है कि आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय में ये रिवर फ्लो करती है, बट नॉट इन त्रिपुरा. ये आज के आर्टिकल में हमने डिस्कस किया था. मेनली जैसे त्रिपुरा है, मिजोरम है, राइट, मणिपुर है, यहाँ पे ये रिवर फ्लो नहीं करती. whereas आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, all of these are where this river flows. So answer to this is C. Upper Siang project, okay, is a hydroelectric power plant being developed in which state of India? तो यहाँ पे आंसर है अरुणाचल प्रदेश. इसमें प्रोटेस्ट चल रहे थे तो हमने ये आर्टिकल भी देखा था, अपर सियांग प्रोजेक्ट. इसके अलावा दिस वन मोर प्रोजेक्ट कॉल्ड एज इटालियन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट. ठीक है, तो आपको ये दो प्रोजेक्ट्स याद रखना है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है. नेक्स्ट, what is the name of the proposed river linking project that aims to transfer surplus Brahmaputra water to the Ganga basin? इसको कहते हैं मानस संकोश तीस्ता गंगा लिंक. आज के आर्टिकल में हमने ये देखा था, तो आंसर इसका है बी, मानस संकोश तीस्ता गंगा link. So a surplus river or surplus water of Brahmaputra is going to be passed to Ganga. Next is what is the Brahmaputra river called in Bangladesh? बांग्लादेश में इसको कहते हैं जमुना. ठीक है, जमुना is what it is called. Padma is the name for Ganga. Padma is the name for Ganga in Bangladesh, right? So answer इसका है C. Let's proceed to the next question. What position has Pakistan been given as a counter-terrorism committee? Counter-terrorism committee में, अरे 1 minute. Yeah. Counter-terrorism committee में it has been given the vice chair as the position. Okay, counter-terrorism में is got as a vice chair. Proceeding to the next one, who is the chair of the counter-terrorism committee? यहाँ पे chair है अल्जीरिया, whereas vice chair कौन था? 3 थे, याद है. One is पाकिस्तान, फ्रांस and Russia. पाकिस्तान, फ्रांस and Russia. तो आंसर इसका है बी. नेक्स्ट, which country is currently the chair of the most important counter-terrorism committee under UNSC resolution 1267, ISIL and Al-Qaeda sanctions committee? और इससे को भी रिलेटेड है तो उन पे सैंक्शंस लगाते हैं ये कमिटी. और अभी इसका को-होस्ट इसका चेयर है डेनमार्क. इंडिया हुआ करती थी इन द ईयर 2022, राइट, अभी है इसका डेनमार्क. तो आंसर इसका है बी. Next one, which key committee will Pakistan chair at the UNSC? That is in this year, remember हमने देखा था तालिबान sanctions committee, right? chair पूछा है, so remember chairing in the Taliban sanctions committee. answer इसका है B, 1398 वाला resolution था ये, right? Proceeding to the next article. Next question is, which organization prepared the recent assessment report on the status of tiger prey? ये दो institutes थे, एक था NTCA और दूसरा था Wildlife Institute of India. Wildlife Institute of India and NTCA. Hence the answer is B. Okay, इसका आंसर है B. Let's proceed to the next question.
When is India planning to complete its next population census? ये दो phases में हो देखा था हमने, एक है in the Himalayan states या the mountainous regions जैसे कि जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड एंड हिमाचल प्रदेश में we'll see by 1st October 2026 and rest of India by 1st March 2027. तो इसका आंसर है B 2027. कंप्लीट कब होगा पूछा है, तो आंसर है 2027. नेक्स्ट वन, द लास्ट एन्यूमरेशन इन इंडिया, द लास्ट कास्ट एन्यूमरेशन, मतलब कास्ट होगा, इस बार भी कास्ट एन्यूमरेशन हो रहा है. तो पहले बार हमने देखा था कब हुआ था, 1931 में. इसके बाद भी नेवर सॉ कास्ट एन्यूमरेशन, तो इसका आंसर है बी 1931. वी ऑल्सो सॉ यू कैन से द सेंसस बॉयकॉट संडे भी घोषित किया था 1931 में. सो आई होप यू रिमेंबर, कल के आर्टिकल में डिस्कस किया है. नेक्स्ट, who is the current president of the International Institute of Administrative Sciences? So यहाँ पे इंडिया बना है और इंडिया में we have V Srinivas who has been appointed or nominated by Narendra Modi. तो इंडिया is currently the chair of the International Institute of Administrative Sciences जो डील करता है with the studies of public administration. UN की मदद करता है in a not formal manner, okay, in an informal manner that we see. तो ये 3 साल के टर्म के लिए बना है. फर्दर, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे पूछा है ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस एंड योर आंसर इज ब्रुसेल्स, बेल्जियम. ओके, तो आंसर इसका है बी, ब्रसेल्स, बेल्जियम. लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कल हमने देखा था हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में, तो ये क्वेश्चन पूछा है कि किससे रिलेटेड है. हेमा कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट मेनली इन द मलयालम फिल्म इंडस्ट्री. राइट, ये हमने कल के आर्टिकल में देखा था. इजी आंसर बी. Who is the current Minister of Social Justice and Empowerment? We have seen Minister of Social Justice and Empowerment yesterday when I was discussing about एक commission बिठा रहे हैं for the senior citizens, right? Because अभी 8% थे, लेकिन we'll see that in the next census data क्या होगा. But by 2047 we see that senior citizen की population 20% होगी. राइट, सीनियर सिटीजन की पॉपुलेशन 20% होगी. सो वी हैव सीन दिस. एंड करंट मिनिस्टर कौन है यहाँ पे सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के, दैट इज डॉक्टर वीरेंद्र कुमार. आंसर इसका है बी. एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि रिसेंटली एक नए प्रेसिडेंट बने हैं साउथ कोरिया के, सो आंसर है कि कौन है ये, एंड द आंसर इज ली जे म्यूंग. ली जे म्यूंग, रिमेंबर यून सो कील वाज द ओल्ड वन और इनको इम्पीच किया गया था बाय द पार्लियामेंट बिकॉज इन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था. राइट, उन्होंने मार्शल लॉ डिक्लेयर किया था जिसके वजह से ही वाज इम्पीच्ड. सो नाउ द न्यू प्रेसिडेंट इज ली जे म्यूंग. तो ये पूरा आर्टिकल हमने देखा, पूरे क्वेश्चंस देखे आज और कल के करंट अफेयर्स से. आई होप यू हैव हैड अ गुड रिविजन ऑफ द सेम. इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, यूज द कमेंट सेक्शन टू आस्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.